अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एडू का। अह, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स है, उस पर हम आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो ये लेक्चर होगा इसमें मेन फोकस होगा एग्जांपल्स ऑन लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट। मेन फोकस होगा क्वेश्चंस पर, नॉट ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, so first of all we should know the definition of limit point. Okay, अब देखिए लिमिट पॉइंट क्या होता है। अगर आपके पास एक सेट है, सपोज आपके पास एक सेट है S, इट इज a सबसेट ऑफ R, इट्स a सबसेट ऑफ R. ओके, वी से एनी पॉइंट, सपोज उसको मैं नाम रखूंगा L, इट्स एनी पॉइंट. Here we will say it is a point from reals. We say that this L, any point, is a limit point of this set S if, कब, if every neighborhood of L, इसको हम ऐसे लिखते हैं L minus epsilon L plus epsilon, every neighborhood of this L, every neighborhood contains at least one point of S other than L. अगर ये L इसी S में से होगा, then this neighborhood, every neighborhood must contain at least one point of S other than this L. Or in other words, if every neighborhood of this L contains infinitely many points of S. This is the definition. So every neighborhood must contain at least one point of S other than this L if L is the point of that very set. Or in other words, we can say that every neighborhood of L contains infinitely many points of S. These two definitions are equivalent. Now we will focus on examples. So पहली example है number of limit points of this set. आपके पास एक सेट है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ, आपके पास एक सेट है S इक्वल टू ये सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n. इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे? यू कैन इजिली सी दैट इट इज अ सेट लाइक दिस 1, 1/2, 1/3, 1/4 up to so on. As we increase the value of n, as we increase the value of n, or we can say that as we tend n to infinity, this set will approach to 0. So we can say that 0 is the limit of this set, and every limit is a limit point. We can say that 0 is the limit point of this set. 0 is the limit point. ये होगी एक बात, लिमिट पॉइंट. अब ये क्वेश्चन है, क्या सिर्फ 0 ही लिमिट पॉइंट है? यस, 0 के एक्स्ट्रा, 0 के अलावा इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज बाय द डेफिनेशन, सपोज 1 इज द लिमिट पॉइंट, सपोज 1 इज द लिमिट पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है? बाय द डेफिनेशन 1 माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन, जो भी मैं एप्सिलॉन लूंगा, 1 प्लस एप्सिलॉन मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ दिस सेट. सो अगर मैं एप्सिलॉन को लूंगा 1 माइनस 1 बाई, सपोज आई विल टेक एप्सिलॉन, सपोज आई विल टेक एप्सिलॉन 1/3, 1 प्लस 1/3, तो इसका क्या मतलब है? इट विल से, वी विल से दैट 2/3 and here this is 4/3. So what we will have the value
0.6 एंड 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है कि 0.6 जो है ये इससे बड़ा है, बट हियर वी हैव 1 से बड़ा इसका, बट दिस ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ दिस सेट। क्यों? इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 0.5, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0.3। वैल्यू कम कम होती जा रही है, लेकिन यहां इस इंटरवल में 0.6 से बड़े बड़े, मतलब इससे बड़े, 0.5 से बड़े। इसका मतलब है there exists at least one neighborhood which does not contain any point of this set other than that. Here we have 1, but it must contain at least 1 point of that. Okay, at least 1 point extra than 1. But here is the neighborhood which does not contain any point other than 1. Hence we can say that 1 is not the limit point. In the same way, 1 by 2 is also not the limit point. 1 by 3 is also not the limit point. And we can say that there exists no limit point other than 0. So number of limit points of this set is only 1, that is 0. Okay, now question number 2. This set, if you have the set like this 1 2 3 so on, you can say that this set is the set of natural numbers. अब देखिए यहां पर easily you can see that here it's 1, here it's 2, here it's 3, here it's 4. You can easily see that this set has no limit point. क्यों? Because if you say that 1 is the limit point, I can draw this neighborhood. But this does not contain any point of this set other than 1. So 1 is not the limit point. If you see that 2 is the limit point, which is not the case, because here I will get a neighborhood which does not contain any point other than 2. In the same way, 3 is not limit point, 4 is not limit point. So you can see that. अच्छा, क्या ये 1/2 लिमिट पॉइंट है? नहीं है, because I can say like this, I can get a neighborhood. There must exist at least one neighborhood which does not contain a point of this. Try to clear the definition. If you have to see that A is the limit point of a set, then you must know that every neighborhood of that A must contain infinitely many points of set. And if you have to say A is not a limit point, then you have to say like this, there exists, iska ulta, there exists at least one neighborhood, at least one, कम से कम एक neighborhood मिलना चाहिए जिसमें उस सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा other than that. So you can see that here I will get a neighborhood, I will get a neighborhood, I will get a neighborhood. So we can say that इसका जो derived set होगा, set of limit points, that's called derived set, that's equal to 5. Okay, in fact you can see that in the same way set of integers, let me get a duster. In the same way you can see that you can say set of integers has also not a limit point. इसको कहते हैं derived set. The set of all the limit points of the set is called a derived set. Okay. Set of all limit points is called derived set. इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपके पास एक सेट है इसको हम S डैश से लिख सकते हैं.
So if you have set of integers, z has no limit point. इसमें भी gaps है. You can see z dash is equal to 5. क्यों? अगर आप देखेंगे 1, so we can draw a neighborhood which does not contain any point of z other than 1, 2, 3, 4, 1 by 2, 1 by 3. कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा इसका. ओके, इनफैक्ट यू कैन से दैट फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है. फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है. ठीक है, इसका 5 होता है लिमिट पॉइंट. ओके, नाउ यू कैन सी दैट Q सेट ऑफ रैशनल्स. अब देखिए यहां पर बहुत, इसका क्या होगा डिराइवेड सेट, मतलब इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे. अब देखिए अगर मैं लूंगा 1, देखिए 1, क्या 1 है इसका लिमिट पॉइंट? इसका क्या मतलब, एवरी नेबरहुड ऑफ 1, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन. दिस इज एप्सिलॉन इज एनी नंबर वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि जितना आपका दिमाग सोचता होगा उससे भी स्मॉल. ओके, बट पॉजिटिव. ओके, every neighborhood of 1 must contain at least one point of Q other than 1, or every neighborhood of 1 contains infinitely number of points of Q. ये कोई भी है तो ये एक इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, एंड ओपन इंटरवल कंटेन्स infinitely many rationals and irrationals. So you can see that here you will have 1 by 2, 1 by 3. आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए. सपोज आई विल टेक एप्सिलॉन 1 by 3. सपोज 1 minus 1 by 3, 1 plus 1 by 3. तो ये आ जाएगा 2 by 3, 4 by 3. यहां पर तो बहुत सारे इनफाइनाइटली रैशनल्स एंड इरैशनल्स होंगे. So this interval contains infinitely many points of Q. So 1 is the limit point. 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 by 2 भी होगा, 1 by 3 भी होगा, 1 by 4 भी होगा, √2 भी होगा, √3 भी होगा. क्यों? अगर मैं √2 लूंगा, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन, यू कैन इजीली सी. आप एप्सिलॉन कोई भी ले लीजिए, इस इंटरवल में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स होंगे. So this interval contains infinitely number of points of Q. So 2 is also a limit point. √3, √4, √5. Every rational is a limit point of this. Every irrational is a limit point of Q. So we can say that limit points of Q is every real number. So we can say that the derived set of Q is R. Okay, I hope you will get it, or you have got it. Okay, now move to another limit points of R. Now if you are being asked in the exam number of limit points of R, मतलब real number के कितने limit points होंगे? बहुत ही आसान है. लिमिट पॉइंट्स ऑफ आर, इसका क्या मतलब है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ आर, हर कोई रियल नंबर्स का लिमिट पॉइंट होगा, तो दैट्स इक्वल टू होल आर. एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट. ओके, यहां तक तो हम पहुंचे. फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट. ओके, नाउ इस पर आ जाएं. इस पर आप क्या कहते हैं? इसका आप मुझे बताइए कि इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे? 1, 2. ये एक ओपन इंटरवल है. अब हम आ जाएंगे अनकाउंटेबल सेट्स पर. ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि
इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होंगे, या अब हम कह सकते हैं ऐसे, मतलब इसका क्या होगा डिराइव्ड सेट। पहली बात कि क्या 1 होगा लिमिट पॉइंट, क्या 1 होगा लिमिट पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, आई हैव टू ड्रॉ ए नेबरहुड अराउंड 1 प्लस एप्सिलॉन। क्या इसमें इस सेट के इन्फिनिटली पॉइंट्स है? बिल्कुल है। आप कोई भी ले लीजिए एप्सिलॉन, सपोज 1/1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, ये हो गया 3/4, 5/4। ये 1 माइनस एप्सिलॉन है, 1 प्लस, तो हमें 1 से आगे जाना है, 1 प्लस। यहां पर तो पता नहीं कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों? हमें जाना है 1 प्लस। अगर होता इतना ही तो हम खतरे में पड़ जाते, लेकिन हमें ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस, तो हमें इसके एक्स्ट्रा में जाना है। इसके यहां पर तो पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसका मतलब है 1 इज द लिमिट पॉइंट। ओके, 1 होगा इसका लिमिट पॉइंट। क्या 2 हो सकता है? अब हम इस पर बात करेंगे, क्या 2 हो सकता है? इसका क्या मतलब है, 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन। ये कह रहा है 2 माइनस एप्सिलॉन, इसका मतलब है इसके इसके लेफ्ट में जाना है, तो यहां तो पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे। अगर आप एप्सिलॉन कोई भी ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स फॉल करेंगे। इसका मतलब है 1 भी होगा लिमिट पॉइंट, 2 भी होगा लिमिट पॉइंट, बट बोथ डज नॉट बिलोंग टू द सेट। इसका क्या मतलब है, a limit point may or may not belong to the set। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या ये होगा 1.5, मतलब ये लाइक करता है 1 और 2 के दरमियान। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? 1.5 माइनस एप्सिलॉन, 1.5 प्लस एप्सिलॉन। यहां पर ये 1, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, तो ये भी होगा लिमिट पॉइंट। इनफैक्ट 1 भी होगा लिमिट पॉइंट, बट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। 2 भी होगा लिमिट पॉइंट, but that does not belong to the set. And every point lying between 1 and 2 are also limit points. So we can say that इसका जो derived set होगा वो होगा, क्या होगा derived set? क्लोज। 1 भी होगा, 2 भी होगा, और सारे पॉइंट्स 1 और 2 के दरमियान। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल लूंगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, सारे पॉइंट्स होंगे क्लोज्ड इंटरवल, एंड बोथ पॉइंट्स बिलोंग टू द सेट। उसमें बोथ द पॉइंट्स डू नॉट बिलोंग टू द सेट। अगर अब हम ऐसे बात करेंगे, -1 टू इंफिनिटी, क्या होगा? इसका होगा -1 भी होगा लिमिट पॉइंट इंफिनिटी। इन द सेम वे अगर आपसे ऐसा पूछा जाए -∞ to 1, तो ऐसे होगा -∞, लेकिन 1 भी लिमिट पॉइंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो भी एग्जांपल्स हमने अभी तक की है, ये सारी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। लेट मी सी कि आपको ये दिखता है, बिल्कुल सही दिखता है। नाउ सम मोर एग्जांपल्स आर हियर। देखिए, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है आपके सामने, लाइक दिस। देखिए कौन सी एग्जाम्पल है, 1 प्लस -1/n डिवाइडेड बाई n, और n जो है ये नेचुरल नंबर है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, ओके, इफ यू पुट, सपोज यू विल
से इफ n इज सपोज ऑड, अगर मैं n की वैल्यू लूंगा, सपोज 1 लूंगा वैल्यू, 3 लूंगा वैल्यू, 5 लूंगा, सपोज n इज ऑड, तो ये स्टेट क्या बनेगा? इफ n इज ऑड, से n इज 1, तो 1 प्लस माइनस 1 पावर 1, सो होगा 1 माइनस 1, दैट इज 0 बाय n, 0 by 1. Okay, I will take n odd. पहले मैं n को odd लूंगा. Now take n is equal to 3, ये आ जाएगा 0 by 3. Take n equal to 5, 0 by 5. Take n equal to 7, 0 by 7. चलता जाएगा. Now if I will take n even, n को मैं लूंगा even, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 पावर 2, सो होगा 1 प्लस 1, ऐसे होगा ना, 1 प्लस 1 दैट इज 2 by 2, यही होगा 2 by 2. ओके, n इक्वल टू 4, 2 by 4, दैट्स 2 by 4. अंदाज देखिए इसका, 2 by 4. इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 by 6 होगा ना, यही 2 by 8. तो ऐसे मिलेगा आपको सेट 0 1 0 1 by 2 0 1 by 3 0 1 by 4 0 1 by 5, सो ऑन. क्या लगता है? अब आप इसका बिहेवियर देखिए, 0 0 0, इट कम्स इनफाइनाइटली मनी टाइम्स. इसका मतलब है 0 एक लिमिट पॉइंट होगा, बिल्कुल 0 होगा लिमिट पॉइंट. नाउ 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5, यह भी अप्रोच करता है 0 की तरफ, तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, दैट इज 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट. 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट. बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसे. अगर आपके पास ऐसे होगा सेट a प्लस 1 by n, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यू कैन सी दैट हियर यू विल गेट लाइक दिस, a plus 1, a plus 1 by 2, a plus 1 by 3, so on. So if you increase the value of n, this set will approach to a. So a is the only limit point of this very set. Okay, these were the examples of limit points. Here we have to see some more examples inshallah tomorrow. So tab tak Allah Hafiz.